So retail, what happens is like when you're a new product, new brand, retail people they cannot accept you easy. So जैसे Blinkit आपसे पैसा लेता है, Zomato आपसे Blinkit पैसा लेता है, Amazon पैसा लेता है. These people also charge you money for the space. एंड हमारा प्रोडक्ट इफ़ यू सी कि हम लोग का प्रोडक्ट ऐसा था कि जिसमें मेरे को अवेयरनेस और लोगों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है एग्जैक्टली. इट कैन नॉट बी जस्ट ऑन द शेल्फ एंड पीपल बाय इट. इतना ईजी पहले कितना भी ईजी है यूज़ करना पर लोगों को पता ही नहीं, उसके अवेयरनेस ही नहीं है. So today we have with us Harshi, who is the co-founder of Pop Drop Drink. Before we get started, Harshi, I would love it if you could give us a brief on who you are, where you come from, and what's your story behind building Pop Drop. I'm Harshil, as you can as well as in my name alone. So I'm the founder of Pop Dog Drinks. Story behind it, yeah, first story is very interesting. So we were a couple of friends together in UK, me and my partner. We were over there, we studied together and we used to party a lot together. And we decided, oh, we need to start something of our own. Because still, what time can we do that job? Right? How much can we work and everything? And we were looking for something, a big opportunity that should come with us and good product. So we saw about the products and we thought, oh, this is the best product I think India can have and India should have. And that's how Pop Drinks came into life. We thought, yeah, we can do it. And we moved back from UK to India. We left our jobs over there. We moved back to India. And yeah, that's how Pop Drinks started. It's all just a leap of faith. Interesting. So when you got like a real insight that you wanted to get into this, the drink part, right? That niche, what do you felt like Pop Drink had a differentiator compared to other brands that they are already doing? So what we always thought was the drinks market जो इंडिया में currently is always very stagnant and very same. हर चीज़ में डेवलपमेंट है, हर चीज़ में कुछ नया है. ड्रिंक इज व्हाट लिक्विड, अभी उसमें क्या ही नया कर सकते हो, राइट? सो हमने सोचा था कुछ नया तो कर सकते हैं बिकॉज़ वी वांट टू डू समथिंग न्यू. बिकॉज़ व्हेन वी लव द होस्टिंग हाउस पार्टीज इन यूके एंड उधर चलो हम लोग जूस लेके आते हैं, सिरप्स लेके आते हैं एंड दिस ऑलवेज स्टे इन द फ्रिज एंड बस कुछ कर नहीं सकते उसका. वन पार्टी, टू पार्टी एंड गोज़ ऑल टू वेस्ट. सो वी थॉट कि दिस शुड वेयर यू कैन यूज़ दिस एंड क्या स्टोर कर सकते हो, कुछ कर सकते हो. And then we come across this product and we thought कि Indian market में देखते कि it's this available or not. And we saw, and there was nothing like this in the Indian market. And we were like, okay, yes, this is something that can be a big thing because it's no storage. It's easy to use. It's light. You can carry it around. If you take cans and everything, it's very heavy. You can put it in a bag, but again, it's heavy. You cannot take it everywhere. It's very easy to use. Just pani chahiye. Just so you put it in cold water, just put the pop inside, and that's it. Your giving is ready. Interesting. That's how we in the product. Interesting. So while you were starting, weren't there any other brands who were doing it? Not in India, when we saw where we were researching, yeah, what in India at least. What? Yeah, in the international market, yeah, there were two brands that were existing at that time. We saw their products, we saw okay, there's something interesting. But happy to say, although we saw their products and everything, we built everything from the scratch. All the flavors to be hamare paas, from the formulation to everything, we built it from the scratch. We did everything, like tasting and all, we did everything. So we are very happy and with our product and we are very proud of it. Interesting. Now, when we see in the US and I'm not sure of UK, have you heard of Poppy? Yeah, Poppy is probiotic drink, I think. Yeah. Right? Yeah. Those guys had, like, when they started, they wanted to build a cult, like, on their own, right? Yes. Yeah. So when it comes to Pop Drop, what is the feeling that you want to create in the audience or the people who are consuming it? What is that they want to be a part of, that you want to make them feel like? I would love to. So what I always believe in कि अगर हम ड्रिंक करते हैं तो it should be a very good drink. आप कोई ऐसे फालतू मत पियो ना यार, जस्ट विस्की की वाटर टेक रूट या कोक स्प्राइट डाला, दैट्स इट. It's easy. बहुत हो गया ठीक है, but house parties में everywhere that's what you are drinking right now, okay? क्या? So what I want is to promote the cocktail culture in India. कि घर पे भी बैठ के आप कॉकटेल एंजॉय कर सकते हो. बाहर जाके तो ऑब्वियसली यू पे फॉर कॉकटेल्स 500-600 रुपीस, यू पे फॉर कॉकटेल एंड दैट्स समथिंग पीपल ऑब्वियसली पे. बट घर पे बैठ के क्या करते हो? घर पे बैठ के यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. क्या दैट्स हाउ यू एंजॉय कॉकटेल, दैट्स हाउ कैन बी.
एंड घर पे छोड़ो आप, व्हेन यू गो आउटसाइड, व्हेन यू आर गोइंग टू बीच, सपोज कार में ट्रैवल कर रहे हो, यू हैव अ ग्लास, यू पुट समथिंग, बट अगेन द ऑप्शंस यू हैव इज व्हाट, कोक, juice, everything, that's it. कॉकटेल एन्जॉय करो ना, इट्स ड्रिंकिंग एन्जॉयड एंड बी हैप्पी अबाउट इट. So that's what we want to promote. When you're drinking, enjoy drinking. You have great drinks. Do not. Interesting. So the whole highlight over here is on the taste part or the experience part, or how it would be shared like among people. How, what is? So initially when we started, so as I said, we build our own self. हम लोगों को tasting and everything किया था. So initially जब मैं tasting करने बैठे थे ना, so our मेरे पूरे family members, my friends, all used to come together. We used to taste the food. And जब तक taste approval नहीं होता सबसे, everybody is okay. No, this is a good taste. This is a very nice taste. तब उसको आगे करते हैं. So it was never about कि हमको पसंद आ गया तो हम आगे कर रहे हैं. Look, can you me? Yeah, I can hear you. Can you me? But your visual, Mute work कब? yeah, now it's fine. ना बोला. Yeah, yeah. सो हम लोग को हमेशा ऐसा ही लगे, टेस्ट कम फर्स्ट. एक्सपीरियंस तो कैसा है कि आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे. फोर्थ टाइम व्हाट अट्रैक्ट्स द कस्टमर द फोर्थ टाइम इज द टेस्ट. Correct. क्यों आएगा कस्टमर वापस आपके पास? क्योंकि टेस्ट अच्छा है, आपको मजा आ रहा है उनको पी के, दे आर एंजॉयिंग इट. दैट्स व्हाई टेस्ट ऑलवेज केम फर्स्ट फॉर अस, एंड देन एक्सपीरियंस, देन द फील एंड एवरीथिंग. Makes a Yes. lot of sense. Now, when it comes to branding, also, your website is one of the few brands that I bookmark in order to Right. inspiration from in terms of designs, the colors, and everything. And that's one of the reasons it stood out. And I want these people on the show. And Thank you. Go on. so, So website, it's very India's also website very interesting for us. So we wanted something very colorful, but it should be not too much कि बहुत सारी चीज़ें डाल दिए एक साथ, वो नहीं चाहिए था हम लोग. We want something colorful, Gen Z vibes, party vibes थोड़ा, कि people को थोड़ा पार्टी भी होना चाहिए, Gen Z होना चाहिए, but थोड़ा comfort भी होना चाहिए. बस क्या है नहीं, this product I can trust when you look at the packaging. It's very simple. तो हम लोग को वो सब चाहिए था. देन वी केम इनटू, वी थॉट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. हमने कलर वो सब सोचे क्या होता है एंड एवरीथिंग, कि कौन से कलर्स देख के लोगों को अच्छे लगते हैं, कौन सा पसंद नहीं आते, पार्टीज में क्या होता है. एंड दैट्स हाउ वी कम इनटू ऑल द कलर पैलेट्स एंड क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना हम लोग को. and सो दैट when it, आवर. yeah, when it Sorry? also adding different taste, features, flavors, and all of that, how did that come along with? Like you mentioned, you were doing the samples in your family and taking the feedbacks and so on. But eventually, there's a phase where you out there and start selling, and then the feedbacks come in from customers like, Right. "Hey, you know what? There's something for mango. Why can't we do for orange or something of that sort?" How has that transition happened over months or years, and how did you implement it one by one? So what happened? Well, initially, if I be honest to you, initially our ball is currently 16 grams of ball. So initially we had 24, 25, 26 grams of ball when we initially started the product. So it was a huge ball. So we thought it's a very good ball because it dissolves, it tastes good, and everything is all nice. When family members, friends, everybody love it. But when we get into the cafes, we started going to the cafes, started pitching the product, and we were like, नहीं, आप काम करो, सिर्फ टेस्ट तो करो ना यार. आपको नहीं खरीदना मत खरीदो, टेस्ट करो, फीडबैक दे दो हम लोग को, हम काम आएगा. So I think I went to 20 to 25 cafes in Mumbai, और more than that only I think. एंड उनसे मैं सबसे पता कर रहा था कि क्या जब आप खरीदोगे तो क्या प्राइस पे आपको अच्छा लगने वाला है कि खरीदने के लिए. अगर नहीं खरीदे तो क्यों नहीं खरीद रहे हो, एंड व्हाट डू यू वांट, कि व्हाट फ्लेवर्स डू यू लाइक, व्हाट फ्लेवर्स कस्टमर को ये पसंद होते हैं. So that's how we introduced first 3 flavors only. There were golden hour, which are our passion fruit. There were strawberry orange, our citrus crush, and raspberry peppermint, our raspberry this. These were 3 flavors we initially started with, and then हमको समझा कि no, people also want Indian flavors with it. Because this time, then we started coming with like simply we हो गया हमारा, this is the unique flavor. There's not with mango and chili. There's guava drama, guava chili. That's how we came with all those 3 flavors. With all about feedback कि क्या चाहिए लोगों को, because आप प्रोडक्ट खुद के लिए तो बनाते हो कि खुद को पसंद है, वो तो इम्पोर्टेंट है, बट लोगों को भी तो पसंद आना चाहिए ना. लोगों को खरीदने वाला ही नहीं है फिर तो कोई नहीं है. Makes a lot of sense. Makes a lot of sense. You mentioned about going to cafes and taking feedbacks and selling there. Are you like a B2B? Are you working on the B2B side as well, or is it just on the consumer side? No, we are looking for B2B side. The B2B side, what we believe in is कि cafes and restaurants जो होते हैं, जो छोटे होते हैं, and they have so alcohol है, नहीं भी है, they do not have great mocktails.
या कुछ पीने के लिए ना कुछ ऑफर नहीं कर पाते लोग कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को। ओके, देयर आर गुड ग्रेट कैफे रेस्टोरेंट्स जिनका पैसा बहुत है, दे कैन हायर बारटेंडर्स एंड एवरीवन, वो तो है ही। बट ये छोटे कैफेज़ हैं, उन सब का क्या? उनके लिए क्या ये सिरप ही यूज़ करे जा रहे हैं, सिरप भी क्या किसको सिखा रहे हैं ये लोग बनाने के लिए? उनके पास कुछ है नहीं है सच वेरी सॉलिड एंड वी नीड टू पिच देम कि आप काम करो, आपका जो कर रहे हो तो कर ही रहे हो। आवर प्रोडक्ट इज़ वेरी ईज़ी टू यूज़ फॉर देम एज़ वेल बिकॉज़ आपको किसी को ट्रेन नहीं करना है, आपको सिखाना नहीं है, नो स्पॉइलेज, डायरेक्ट काउंटिंग है, डायरेक्ट कुछ है नहीं, स्टोरेज का भी इश्यूज़ कुछ है आते नहीं हमारे। सो इट्स लाइक अ वेरी यूज़फुल थिंग फॉर देम एज़ वेल, फॉर क्यूएसआर्स, यू से कैफ़ेज़, यू से रेस्टोरेंट्स, उन सबको ईज़ी है यूज़ करना। So we are always looking B2B and C2C as well. D2C तो हमारा वेबसाइट से चल ही रहा है। We are also live on Blinkit in Mumbai right now. We are doing Amazon as well. How is that coming along? Blinkit. Blinkit we started this month only. We are very proud that we started Blinkit. So we are getting sales, but it's something How like is it to get on Blinkit? depends upon the product actually if I be honest. ये हम लोग को तो मिल गया था। It took us a month के पहले अप्लाई करो, you paid certain amount for an SKU and then they will let you in and if they like your product, they think it can be grown, तो आपको let in करते हैं and initially first month is your trial period that they give it to you. कि फर्स्ट मंथ में आपको इतना चाहिए, इतना मनी रेवेन्यू आपको जनरेट करना है। अगर आप नहीं करते हो, दे विल रिमूव यू। I think your video is stuck. Can you see me now? Now I can listen to you. Yeah. Yeah. Can you see me? Perfect. Yeah. तो इनिशियली 10 डार्क स्टोर्स देते हो आपको। 10 Hmm. डार्क स्टोर्स में आपको ट्राई एंड 10 डार्क स्टोर यू कैन नॉट चूज़ द डार्क स्टोर्स कि मेरे को ये एरिया में चाहिए। उनका वो सेट है कि ये डार्क स्टोर हम आपको तो उसमें जाओ, उसमें आप बेचो, आप करो मेहनत पूरा। अगर तो उसमें आप बेच पा रहे हो, उसमें कर पा रहे हो, देन दे विल गिव यू मोर डार्क स्टोर्स। तो फर्स्ट मंथ एट टाइम वी आर और सीख ही रहे हैं वो सब तो। Interesting. देखना है बढ़िया। Interesting. All the best on that. Now, in terms of doing it on Amazon Blinkit, which one would you prefer and why? वी विल ऑलवेज़ प्रेफर ब्लैंकेट बिकॉज़ अगर सपोज़ पार्टी कर रहे हैं अपन, कितनी बार अपन पार्टी प्लान करते हैं और कितनी बार पार्टी इम्प्रॉम्प्टू होती है ये। तो ज़्यादातर पार्टीज़ जो होती है या इम्प्रॉम्प्टू करते हैं अपन हाउस पार्टीज़ क्या है मेरे इधर अभी आ जाओ या प्लान भी करते हैं। तो लाइक 1 वीक का पीरियड प्रायर प्लान करें, 2 वीक्स प्रायर प्लान कर सकते हैं, सर्च नहीं करते। एंड पीपल जो रेगुलर ड्रिंक भी करते हैं सपोज़ कि अगर आप और मैं ही हो जाते हैं सपोज़ एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं। तो अपन अगर एवरी वीक भी करते हैं, तो मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि कोई 3 टू 5 डेज़ चाहिए तो मेरे वेबसाइट या अमेज़न से कोई ऑर्डर कर रहा है तो उसको पहुँचने के लिए। तो अभी मैं 3 टू 5 डेज़ को उसको ऑर्डर कर रहा हूँ कि पहुँच जाएगा एंड देन आई विल ड्रिंक इट। वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, लोगों को फिर वो इंटरेस्ट जब एक बार पी के पसंद भी आ जाए ना, तो पूरा नेक्स्ट टाइम जब तभी ही लेंगे जब अच्छा पार्टी रहेगा उनके पास। अगर नहीं है, तो क्या नॉर्मल के यूसेज की तो लेंगे नहीं। तो नॉर्मल यूसेज पे अगर ब्लिंकिट पे रह गए हम लोग, कैन डिलीवर 10 मिनट्स टू देम, तो इट विल बी लाइक हाँ, जब मैं कोक पेप्सी मँगा रहा हूँ, ये भी मँगा लो तो साथ में इट विल बी ईज़ियर ड्रिंक्स हो गया काम। सो वो यूसेज पे जाने का हम लोग अभी। Makes a lot of sense. Now, in terms of social, also, you guys are doing like a really cool videos there, right? What are some of the formats that is working for you guys? And what if we take like for the last 3 months, let's say from November till Jan, the kind of content that you guys have put out, what type of content, like what pillar of content is working for you guys in terms of organically? So the best that work for us is relatable content. Okay, say product, say trendy content is good, it's nice, you should do it. But the work that best is the relatable content. You need to relate to the public. कि अच्छा नहीं ये हम करते हैं, ये प्रोडक्ट है एंड एवरीथिंग एंड यू नीड टू शो देम द यूज़ केस एज़ वेल कि किधर-किधर यूज़ कर सकते हो, कि यू गो टू अ पार्टी, ये यू कैन यूज़ दैट। यू आर गोइंग टू अ हाइक, उधर यूज़ कर सकते हो, पूल साइड में बैठे हो, यूज़ कर सकते हो। So those relatable content are very useful for us because वहाँ से ऑर्डर भी ज़्यादा आती है, सेल्स आता है and everything because people relate to that. So if you see as well, the main that one of the biggest videos that how got viral was the Karobar reel where people were drinking साइड के कार पे जाके पी रहे बिकॉज़ पीपल थॉट के अच्छा हाँ, करते हैं ये हम लोग, रिलेटेबल है, यूज़ करते हैं हम लोग ये सब, सब करते आ रहे हैं हम लोग। तो दैट वाज़ रियली वेल वेडिंग्स के वीडियोज़ हमारे अच्छे चलते हैं बिकॉज़ रिलेटेबल है अगेन। ट्रेंडी वीडियोज़ मेक इट गेट यू व्यूज़, पर रिलेटेबल कंटेंट विल गेट यू सेल्स मी।
बिकॉज़ दे विल नो कि कैसे यूज़ करना है प्रोडक्ट, कहाँ यूज़ करना है एंड उसके अकॉर्डिंग लोग बाय करते हैं फिर। Interesting. Now, in terms of like the major channel that is bringing in the revenue out of all the channels that you have on social, which is like the biggest driver, Instagram. या सॉरी सोशल Yeah, in terms of social, like the biggest driver for sales, which channel is it right now? Instagram for you guys. या इंस्टाग्राम ओनली बिकॉज़ Instagram is a very good tool. I'm telling you कि अपन we do not understand it like अगर मैं नॉर्मली यूज़ करते Instagram इस फॉर्म में यूज़ लाइक ठीक है मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं पोस्ट नहीं करूँ, इट्स फाइन क्या ही फ़र्क पड़ता है। But when you open a brand, it changes everything. You Instagram is a tool where you can reach out to people from every part of the world तो ठीक ही है, कर ही सकते हो। Just like open India also every part of India you can reach out to people over there and वो आपको देख सकते हैं, वो आपको आप उनको बता सकते हो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपको क्यों की ज़रूरत है एंड आपको क्या चाहिए मतलब एवरीथिंग। So Instagram is a very good tool. Again, Meta is an it's very nice. Helps Interesting. you a lot. Interesting. So now, like in terms of scaling also, right? Especially in FMCG, it's always tricky and at the same time it's rewarding as well. What are some of the hardest things or objections that you guys get when it comes to scaling a brand across? तो इनिशियली बिफोर ऑब्जेक्शन ओनली थोड़े चैलेंजेस हमने फेस किए थे वर लाइक के आपका प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे हैं, हम लिक्विड मिक्सर्स क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं एवरीथिंग देन वी मेड देम थॉट के अच्छा नहीं क्योंकि लिक्विड मिक्सर्स हमें ये सब करना पड़ता है हमारा इतना ईजी है। सेकेंड ऑब्जेक्शन अभी प्रोडक्ट के बारे में समझाए किसे कि हाउ ईजी कैन बी बट कितना वो ईजी लगता है वो प्रोडक्ट समझाने के लिए या बोलने के लिए उतना समझाना किसी को एवरी टाइम कि ओ नहीं ये है इसको ऐसे करो वो करो भले कितना भी सिंपल हो कि लोगों को समझाना एक्सप्लेन करना बड़ा वेरी डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज क्या अच्छा नहीं ये बॉल है बॉल क्या है कैसा बॉल है ये डिजॉल्व कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है एवरीथिंग देन वी रियलाइज के द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन से इज इट्स लाइक अ बाथ बॉम्ब बट फॉर योर ड्रिंक इट्स द सिंपलेस्ट वे वी कैन एक्सप्लेन द प्रोडक्ट वी अंडरस्टूड बिकॉज वो हो गया बस अभी कभी किसी को भी बोल पुलिस आएगा बात बॉम्ब मोटिवेटिंग ये अंडरस्टैंड के अच्छा नहीं पाँच दिन के सामने मेरे को हो गया मैं think उसने explain Yeah, very simple way of explaining it. right For me also, when I looked in on the website, I was looking at, I thought it's a sachet or something, and later I'm like, no, cool. These are bath bombs, like for drinks. I was- Yeah, it's not there. But it's easy for not for us to explain अगर मेरे को आपको बोलना रहेगा किसी को एक्सप्लेन करने को easy for you as well to explain ये बात ऑफ हटेगी तो सामने वाला भी आप थर्ड पर्सन को समझाओगे easy for them to explain as well तो इसके लिए हम लोगों ने भी वो कर दिया कि वीडियो को पूछता है कि क्या है प्रोडक्ट इसलिए का बात दो बट पर ड्रिंक Interesting, interesting. And now, what has been like the most effective GTM for you, like in when you guys started? What tricks or strategies that you guys use to acquire like the first 50 to 100 customers? Initially, first, if we do 100 customer honest and say it was very difficult for us to acquire the because yeah, we were doing on this and we were doing videos and everything. But the easiest way and the best, fastest way for us was meta ads again. Hmm. Okay, meta ads could let people see you and bring back to your website and everything, and then people make you believe, and then they buy you. So first, if you do 100 customers, I think meta ads ही थोड़ी जाना चाहिए सबको anyone who does it. Do meta ads, run meta ads. आपको 50 to 100 customers in a country like India with a population of so huge, it's easy. But it's very important as well. कि first 50 to 100 customers को reach करना, उनको समझना कि क्या है प्रोडक्ट, उनको समझना कि क्या क्यों लिया है इनने, कैसे लिया है, इनको कैसा लगा है वो चीज़, फीडबैक लेना उनसे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू डेवलप योर प्रोडक्ट एंड देन यू चेंजेस करते रहना पड़ता है आपको आपस बिकॉज यू वांट टू बी द बेस्ट या एटलीस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट कि जो हो सकता है. तो वही फीडबैक एंड एवरीथिंग से आता है. द फर्स्ट 50 टू 100 कस्टमर्स वाज ऑन मेटा एड्स ओनली तो मेटा एड्स ओनली गॉट इट एंड फिर ये बोलते लोगों से मालूम पड़ा उनको एंड देन वी गॉट वर्ड ऑफ माउथ से बहुत काफ़ी चीज़ आने लगे फिर. Interesting. If you had to give like an advice for someone who wants to start a brand in FMCG niche itself, what are some of the mistakes that they need to avoid? Let's say three advices.
And let's stick to English here. So FMC, right? First, I Yeah. think you should always get your license and everything done initially. कि जब डेवलपमेंट फेज में भी हो, always get feedback. Always, at every stage, get feedback. When you think your product is ready, go around. क्योंकि मेरा प्रोडक्ट आई थिंक इफ से मैं दिसंबर में वी वर रेडी विद आवर प्रोडक्ट एंड देन मैं जनवरी फेब तक मैं रोम किया हूँ लास्ट ईयर कि विद आवर प्रोडक्ट्स के क्या टेस्ट करवाने क्या प्राइस एंड एवरीथिंग मैम, क्योंकि हाँ लोग खरीद तो रहे ही है, बट इज इट द बेस्ट आई कैन डू? तब तक हमको लगता था कि वही था, बट व्हेन वी वेंट आउट देयर वी टुक फीडबैक एंड वी सॉ कि नहीं कुछ और भी कर सकते हैं, वी नीड टू मेक चेंजेस, वी नीड टू मेक इट बेटर एंड दैट्स हाउ कैन वी मेक इट बेटर। तो हम लोगों ने चेंजेस किया, Jan, Feb, हमने किया Feb, March, April, May, I think 3-4 months we took just to make changes. जून में हम पूरा पैकेजिंग उस सब लेकर आए वापस, थोड़ा अच्छी वाली पैकेजिंग है ना जो भी देख रहे हैं आप लोग एंड द वेबसाइट एंड देन वी लॉन्च्ड इट। टाइम लिया, टेक योर टाइम एफएमसीजी में, डू नॉट रश इट बिकॉज इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू तो आपको टाइम जाएगा एंड टेक योर टाइम। द फर्स्ट एडवाइस माई दैट, सेकेंड एडवाइस विल बी डू नॉट जंप इनटू रिटेल क्विकली। Can you Because explain retail that? is Retail. Yeah. So retail, what happens is like when you're a new product, new brand, retail people they cannot accept you easily. So जैसे Blinkit आपसे पैसा लेता है, Zomato आपसे पैसा लेता है, Amazon पैसा लेता है. These people also charge you money for the space. एंड हमारा प्रोडक्ट इफ यू सी कि हम लोग का प्रोडक्ट ऐसा था कि जिसमें मेरे को अवेयरनेस और लोगों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है एग्जैक्टली। इट कैन नॉट बी जस्ट ऑन द शेल्फ एंड पीपल बाय इट। इतना ईजी, पहले कितना भी ईजी है यूज़ करना, पर लोगों को पता ही नहीं, उसके बाद अवेयरनेस ही नहीं है। सो आई थिंक रिटेल स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। आप बोले अवेयरनेस क्रिएट करो एंड इफ यू वांट टू स्पेंड मनी ऑन समथिंग, डू ब्लिंकिट, डू ज़ेप्टो, डू स्विगी, ये सब मत जाओ, अमेज़न पे पैसे स्पेंड करो। एंड देन व्हेन यू सी कि नहीं बहुत सेल्स आ रहे हैं, बहुत जगह पे आ रहे हैं एंड आई थिंक कि आप सोशल मीडिया भी करो तो देयर आर पीपल फुल कॉन्टैक्ट इनको रिटेल में स्टोर वो सब पे रखना है आपको, देन यू कैन थिंक अबाउट दैट। बट इनिशियली आई विल से एक्सपैंड ऑन योर वेबसाइट, अमेज़न एंड दिस ऑल थिंग्स ओनली। थर्ड एडवाइस, व्हाट इज़ द एडवाइस? ये हो गया। Third advice will be like for any startups, I will say, okay, you need to have what I prefer and I think I'm very glad to have is a strong co-founder. So you're not a strong co-founder, you need to have a co-founder with you because startup journey is not easy. Ups and downs every day. You feel bad, am I doing the right thing? Am I, this is the good thing? मैं सही कर रहा हूँ ना, बंद कर दूँ क्या, कुछ नया चालू कर दूँ क्या? वो थॉट्स आपको कॉन्स्टेंटली आ सकते एंड दैट्स वेयर योर को-फाउंडर कम्स इन कि जो आपको सपोर्ट करते हैं। सो नाउ समझिए मैं को-फाउंडर निशे का हूँ। वी सपोर्ट टू ईच अदर एवरी डे कि हमको एक-दूसरे को अप पुल करना रहता है हमेशा। एक डाउन हुआ, दूसरा तो अप रहना चाहिए। फिर दोनों डाउन हुए, तो एटलीस्ट दोनों बात करके सॉर्ट करके इसको दोनों को अप कर सकते हैं। तो वो मोटिवेशन हमेशा रहना चाहिए आपके पास। यू शुड नॉट अगेन, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रूट वेरी फास्ट और वेरी ईज़ी कि मैंने आज चालू किया, मेरे को कल से पैसा आना चाहिए। इट्स नॉट दैट। टाइम लगेगा इसको, इट नीड टू बिल्ड इट। सो नाउ सो इफ आई से कि जैन टाइम लास्ट ईयर, तो ऑलमोस्ट मेरे को 1 साल हो गया उस चीज़ को। बट मैं तो भी मैं जून में, मैं बोलूँगा मैं जून में लॉन्च किया था। मैंने सिर्फ दिसंबर से जून तक मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया रहेगा, सपोज़ मैंने सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ध्यान दिया। इट टूक सम टाइम, और अभी भी हम टाइम ले रहे हो उस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि एवरी स्टेप पे आपको प्रॉब्लम आने वाले हैं। सो टू हैव अ स्ट्रॉन्ग को-फाउंडर विद यू जो आपको सपोर्ट करे, हेल्प करे, खुद वो भी सिखाए, समझाए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So that's will be my third advice, to have a really good co-founder, and I'm lucky with that. That's interesting. Yeah, it's I personally in my career also that has been like a biggest support system for you. If that is not there, it's really tough. It's really tough. Yeah. Guys, your co-founder is the only person who is the same boat with you, who actually understands you. True. तो बाकी आप बोलो बाहर जाओ, कुछ भी बोलो लोगों को, लोग आपको एडवाइस देंगे, लोगों के पास 10 चीज़ें बोलने के लिए। और जो एक्चुअल में करना है वो तो आपको आपके को-फाउंडर को ही बताना है यार, जो आप किस चीज़ पे खड़े हो। कैसे करना है वो तो हम डिसाइड कर सकते हैं, साथ में मिलके आई एम एन एडवाइस। एंड देखिए ये होता है को-फाउंडर लाइक एडवाइजरी फॉर यू, कि उसके लिए आप हो, आपके लिए वो है। आपको कोई प्रॉब्लम है उसको पूछो, उससे ये करो, बात करो, सॉर्ट आउट करो, हो गया, चलो काम आ गया। एटलीस्ट एक अप्रूवल काइंड ऑफ थिंग कि हाँ, चलो मैं सही कर रहा हूँ, कि मैं सही जा रहा हूँ, वो भी हो जाता है। तो आई थिंक इट्स वेरी नाइस।
एंड आई थिंक everybody should have it कि आपके पास चलो रिस्क भी थोड़ा अगर आप फाइनेंशियल वाइज भी बोलो पर रिस्क डिवाइड हो जाता है एंड प्रॉफिट्स भी डिवाइड होते हैं पर रिस्क भी डिवाइड हो रहा है आपका। मेहनत दोनों की चल रही है साथ में कि वो एक जन मेहनत कर रहे हैं वैसा तो है नहीं क्योंकि वन पर्सन कैन नॉट रीच एवरीथिंग। देन यू नीड टू बिल्ड अ टीम ये करो वो करो एटलीस्ट 2 पर्सन है देन यू बोथ ऑफ यू कैन टुगेदर डू समथिंग क्या आप थोड़ी सी स्पेशलिटी हो उसका उस एक दूसरे में स्पेशलिटी है तो साथ में कर सकते हो ना काम तो सब Makes a नाम lot of मियां sense. सब नाम मियां निशे का नाम है सर कि हम लोग एक दूसरे का छोड़ दिया है कि ये मैं संभाल रहा हूँ ये तू संभाल रही है और हम ट्राई करते हैं कि कितना हम लोग ऑब्वियसली वी लुक इनटू ईच अदर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बट हम ट्राई करते हैं कि इतना इंटरवीन ना बिकॉज Got it. उसका वो एक्सपर्टीज है तो कर रहे हैं हम लोग बट कभी कुछ हेल्प चाहिए या मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है या उसको लगता है तो हम ऑब्वियसली वी इंटरवीन ईच अदर बट बाकी वी वर्क स्मूथली चल रहा है हमारा बट आई थिंक या co-founder is a must for everyone. Awesome. Awesome, Harshil. That's pretty much it I had to ask you this evening. Thank you for taking out your time, talking to us and Thank you so conversation. much. It was great, great speaking to you.